Hello, first standard student. Good morning. Let's start our EVS 2 subject. Shiva Chhatrapati, standard 4. We yesterday's lecture, we started this lesson number 10, Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkind. First recite what we learned in the last lecture. We had learned last lecture. We learned that how Shivaji Maharaj escaped from the Panalgarh. Okay, remember, है ना? Shivaji escaped from the Sheikh. How to escape from the Sheikh? And Siddhi Johar, who was the Sardar? Siddhi Johar. Huh? Siddhi Johar had a huge army with him, and he was brave and ruthless. Siddhi Johar कैसे था? Siddhi Johar was brave and ruthless, and he was a strict discipliner also. He led Sheikh to the Panalgarh, and confided Shivaji within in the fort. But Shivaji escaped from the Sheikh. For that, a plan was hit upon to escape from the Sheikh. What is his plan? His plan was that two palkis were kept ready. One was meant for the Shivaji, in which he would proceed using a difficult route, and the other would be accompanied by the another person distinguished as a Shivaji. Okay, and as planned, the palkis carrying Shiva Kasid. Okay, who was the person? Who was the brave person? His name was Shiva Kasid. Shiva Kasid was the hairdresser of Shivaji's service. Okay, he was courageous and shrewd. And as a plan, the palkis carrying Shiva Kasid come out of the Rajdindi. It was a dark night and it was raining heavily. Still, some enemy soldiers were keeping watch by capturing they captured the palkis. They thought they had caught Shivaji himself and took the palki to Siddhi's camp. Jubilation began to the camp. In the meanwhile, the real Shivaji escaped from the fort by the difficult route. He was accompanied with the Baji Prabhu Deshpande and some selected Sardars. Okay, this one we had completed. And when the Siddhi Johar learned that Shivaji had given him a slip, he was livid with anger. Okay, he immediately dispatched the Sardar Siddhi Masood, accompanied by a big army in hot pursuit of Shivaji. Okay, यहाँ तक हमने पढ़ा था. Next we will start from here. आज ये today's date is 23/12. Baji Prabhu the brave. The angry troop of Siddhi was fast galloping toward the Ghodkind pass. Shivaji saw that it was impossible to reach Vishalgarh before the enemy overtook him. Okay, जैसे ही सिद्धि जोहर उनके पीछे आ रहे थे, सिद्धि मसूद. So शिवाजी थॉट कि अब वो उन लोग से ज़्यादा बच नहीं पाएंगे. So he said to Baji Prabhu, Baji, this is a very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our hill. Okay, शिवाजी महाराज ने उन्होंने देखा कि अभी एनिमीज तो बहुत नज़दीक आ रहे हैं और आगे क्या है, पास है, घोड़खिंड पास है. तो हम लोग यहाँ से, रोड भी कैसा है, स्टीप मतलब बहुत स्लोप वाला है. सो हम लोग उनसे बच के जा नहीं पाएंगे. सो हम लोग क्या करेंगे. उन्होंने बाजी प्रभु से बोला. ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन. मतलब अभी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है. सो द रोड अहेड इज स्टीप एंड द एनिमी इज राइट ऑन आवर हिल. और एनिमी भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं. इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़. और अभी बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग विशालगढ़ पे पहुंच पाएंगे. सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी. सो हम लोग क्या करेंगे, अभी पीछे मुड़ते हैं और एनिमीज का सामना करते हैं. बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एगिएशन आर गोइंग ऑन इन शिवाजीज माइंड. बाजी प्रभु तो उनके लॉयल सर्वेंट थे. तो उनके मन में जो
एग्रेशन था, जो चल रहा था हलचल, वो उनको समझ में आई, बाजी प्रभु को। द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास, और एनिमी बहुत फास्टली पास की तरफ आ रहे थे। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर, और ऐसी सिचुएशन थी कि द लाइफ ऑफ शिवाजी का लाइफ भी एंड स्वराज का लाइफ भी किस में था, डेंजर में था। सो ही सेड, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़। बाजी प्रभु सेड, व्हाट ही सेड? ही सेड, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़। हाँ, टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू, आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट। ओके, तो वो बाजी प्रभु क्या बोले शिवाजी महाराज के, आप विशालगढ़ की तरफ निकल जाओ। ओके, आपके साथ कुछ थोड़े बहुत सोल्जर्स ले लीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए। मैं क्या करूँगा, आई विल डिफीट दिस पास, मैं ये पास में लड़ूंगा, एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट, और एनिमीज़ को ये पास को क्रॉस करने नहीं दूंगा। पास में समझ में आएगा आपको, पास मीन्स व्हाट? दो, देखो यहाँ पे ये जो दो पहाड़ी है उनके बीच में जो छोटा सा रास्ता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड अ पास। सो ये जो पास है, मैं एनिमीज़ को क्रॉस करने नहीं दूंगा। आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास इफ़ नीडी बी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मेरा जान भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एनिमीज़ को ये पास क्रॉस करने नहीं दूंगा। इफ़ आई डाई, अगर मैं मर भी गया, इफ़ आई डाई देयर विल बी मेनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस, ही सेड। देखो बाजी प्रभु क्या बोले कि अगर मैं मर गया, इफ़ आई डाई देयर विल बी मेनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस। अगर मैं इसमें लड़ाई में मेरी जान भी जाती, मैं मर भी जाता हूँ, तो मेरे जैसे बाजी आपको बहुत मिलेंगे, बट नो वन कैन रिप्लेस यू, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अवर स्वराज नीड यू, हमारे स्वराज को, अपने स्वराज को आपकी ज़रूरत है। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स, एनिमीज कैसे आ रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर में आ रहे हैं। वी कैनॉट होल्ड आउट अगेन देम विथ आवर लिमिटेड फोर्स, अगर हम लोग उनका सामना करेंगे तो हमारे पास इतनी फोर्स सोल्जर्स नहीं है, सो हम लोग उनसे सामना नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट वेट, गो अहेड। सो आप यहाँ पे वेट मत करो, आप यहाँ से निकल जाओ। हाँ, वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास्ट, हम लोग क्या करेंगे, एनिमीज़ को यहाँ पे ही एंट्रेंस में ही रोक के रखेंगे। वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली, जब तक आप सुरक्षित पर सेफली विशालगढ़ पे नहीं पहुंच पाते, तब तक हम लोग एनिमीज़ को आगे निकलने नहीं देंगे। समझ में आया आपको? कितने लॉयल सर्वेंट थे शिवाजी महाराज के। ये बाजी प्रभु शिवाजी के मन में जो हलचल थी वो उनको समझ में आई। वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत कम सोल्जर्स है, इनके साथ हम लोग एनिमीज से लड़ नहीं पाएंगे। ओके, इसमें आप क्या बोलते हैं महाराज को, आप यहाँ से निकल जाओ विशालगढ़ की तरफ, हम लोग क्या करेंगे, एनिमीज को इधर ही रोक के रखेंगे। अगर इस टाइम पे हमें हमारी जान भी देनी पड़ी तो भी हम लोग देने के लिए तैयार है। अगर एक बाजी की जान जाती है, एक बाजी नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत सारे बाजी मिलेंगे। हाँ, उनके प्लेस पे दूसरे बाजी आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक बार आप नहीं रहेंगे तो स्वराज को दूसरा शिवाजी नहीं मिलेगा। ओके, बट आपका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, आपके प्लेस पे आपका प्लेस कोई नहीं ले सकता। हमारे स्वराज को, अपने स्वराज को आपकी ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस में ही एनिमीज को रोक के रखेंगे, उनको आगे निकलने नहीं देंगे। बाजी प्रभुज ब्रेव वर्ड एंड हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी ब्रॉट टीयर्स टू शिवाजीज आइज। ये जो बाजी प्रभु के वर्ड्स थे और उनकी जो लॉयल्टी है, ये देख के शिवाजी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। ही वॉज मोस्ट अनविलिंगली टू सैक्रिफाइस दिस जेब ऑफ द मैन फ्रॉम हिज पर्सनल सेफ्टी, बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन शिवाजी महाराज के पास टाइम ही नहीं था, बिकॉज एनिमीज नज़दीक आ रहे थे। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडियल ऑफ स्वराज, उनको क्या आइडियल था, स्वराज बनाना, अपना हिंदू महाराष्ट्र में स्वराज बनाना उनका एम था, आइडियल था। ही फाउंडली एम्ब्रेस्ड बाजी एंड सेड, उन्होंने बाजी प्रभु को गले से लगाया एंड बोले, वी शैल मूव अहेड टूवर्ड विशालगढ़,
हम लोग अभी विशालगढ़ की तरफ मूव हो रहे जा रहे हैं। एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन विल बी फायर्ड। जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे, फोर्ट पे पहुंचेंगे, गन फायर होगी। ओके, दैट विल बी द सिग्नल ऑफ आवर सेफ्टी अराइवल। उसको क्या रहेगा, मेरे सेफली हम लोग पहुंच गए, उसका एक सिग्नल रहेगा। एज सुन एज यू हियर द गन फायर abandon the pass and follow us to the fort। जैसे आप गन फायर आवाज़ सुनेंगे, आप पास छोड़ो और निकल आओ, फोर्ट की तरफ निकल के आओ। समझ में आया? जैसे हम लोग खुशी होती तो हम लोग फटाके फोड़ते ना, तब उस तरह पे वो साइन रहे। उन्होंने क्या बोला कि मैं जब फोर्ट पे पहुंच जाऊंगा तो एक साइन होगा। क्या साइन होगा? गन फायर होगी। गन फायर मीन्स मालूम है ना, तोफ का फायर हो जाएगा। बाजी डिफेंस ऑफ द घोड़किन। Baji's defense of the Ghodkin Pass. So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. तो शिवाजी ऐसे बोल के वहाँ से निकल पड़े। बाजी प्रभु को पास में लड़ने के लिए छोड़ के शिवाजी महाराज निकल गए। बाजी मेड अ लॉ बो टू द रिसेडिंग फिगर ऑफ शिवाजी। जैसे शिवाजी महाराज मुँह हो गए, टर्न हो गए, बाजी प्रभु ने उनको झुक के प्रणाम किया। एंड देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर बैटल, और खुद को बैटल मतलब वॉर, लड़ाई के लिए तैयार करने लगे। ही टुक अ सॉर्ड इन हिज हैंड। सॉर्ड मीन्स तलवार वाले मैंने सॉर्ड, तो ही टुक अ सॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द पास। उन्होंने अपने हाथ में सॉर्ड ली और पास के खिंड, पास मतलब खिंड बोलते हैं उसको मराठी में, उधर खिंडी में पास में एंट्रेंस में खड़े हो गए। ही डिवाइडेड हिज कंपनी ऑफ सोल्जर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड पोस्टेड देम एट सूटेबल पॉइंट। उन्होंने अपने पास जो गिने चुने सोल्जर्स थे, थोड़े बहुत सोल्जर्स थे, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उनको सूटेबल पॉइंट्स में क्या क्या तैनात किया। हाँ, द मावल्स टुक देयर पोजिशन। हाँ, मावलास टुक देयर पोजिशन एंड कलेक्टेड ह्यूज बाउल्डर्स एंड स्टोन टू बी यूज्ड फॉर वेपन। ये जो मावलास थे उनके पास इतने सारे वेपन्स भी नहीं थे, वेपन्स मतलब हथियार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर जमा किए बड़े बड़े, और वो जमा करके वो पास ऐसे छुप के बैठ गए। द मावलाज अक्रॉस द पास वेयर नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर। मतलब ये मावलाज ने क्या किया, एक मजबूत कड़ी बना दी वहाँ पे पास में ही। इन द पाथ ऑफ द एनिमी, एनिमीज के रास्ते में उन्होंने वो पास में क्या किया, एक बैरियर बना दिया। बाय दिस टाइम द एनिमी हैड रीच द माउथ ऑफ द पास। इसी टाइम में वहाँ पे एनिमीज पहुँच गए। एंड वन कुड हियर देयर वॉर क्राइज, और उनकी वॉर क्राइज सुनाई देने लगी। वॉर क्राइज मतलब जैसे स्टार्ट करते हैं ना युद्ध, कोई भी बैटल, तो एक वॉर क्राई होता है। बाजी एड्रेस्ड हिज ट्रूप एंड सेड, देखो उस टाइम पे बाजी ने अपने ट्रूप्स को एक मैसेज दिया। ही सेड, माई ब्रेव सोल्जर्स एंड कॉमरेड्स बी प्रिपेयर्ड। देखो उन्होंने क्या अपने ट्रूप्स को क्या बोला कि माई ब्रेव सोल्जर्स एंड कॉमरेड्स, हाँ, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। यू मे डाई फाइटिंग बट डू नॉट डेसर्ट योर पोस्ट। उन्होंने क्या बोला कि आपकी जान भी जा सकती है, यू मे डाई फाइटिंग, जब हमारी लड़ाई चालू रहेगी तो यू मे डाई, आप मर भी सकते हो, बट डू नॉट डिजर्ट योर पोस्ट, लेकिन अपना प्लेस नहीं छोड़ने का है। डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्कर द पास। हाँ, अपनी जान दे दो, लेकिन एनिमीज को ये खिंड, ये पास, हाँ, आगे ये मत करो। नो मैटर व्हाट प्राइज हैज़ टू बी पेड, उसके लिए हमें कुछ भी कीमत देनी पड़ेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये एनिमीज ये घोड़किन पास करके आगे नहीं जाएंगे। जब तक शिवाजी महाराज ऊपर नहीं पहुंचते विशालगढ़ पे और गन फायर नहीं होती, तब तक हमें क्या करना है, ये पास में लड़ना है। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावलाज स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास। उस माउथ के पास, मुंह में ही, मतलब एंट्रेंस में ही वो सब लोग एक बैरियर की तरह खड़े हो गए। बैरियर मतलब एक मजबूत कड़ी, गेट की तरह फर्म एंड फेयरलेस वेटिंग द एनिमी। हाँ, जैसे एनिमीज की वेट करते हुए वो पास में ही खड़े हो गए। पास मतलब एंट्रेंस में। द पास वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, हाँ, देयर बीइंग ओनली अ नैरो एंड अ जिगजैग पैसेज अक्रॉस इट। ये पास ऐसी थी कि बहुत नैरो थी। नैरो मतलब दो पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा रास्ता था, और वो भी जिगजैग था। जिगजैग मतलब सीधा नहीं था। ओके, एट द
अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टुवर्ड द विशालगढ़। हाँ, यहाँ पे ये सब तैयारी हो रही थी पास में एनिमीज़ का सामना करने की, लड़ने की, लड़ाई की। तब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ बहुत स्पीडली जा रहे थे। The fort was still some distance away and it would take शिवाजी at least 2 hours to reach it। और वहाँ पहुँचने के लिए शिवाजी महाराज को कितने टाइम लगने वाला था? अभी और भी 2 hours। ये बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट फॉर दोज 2 hours, शिवाजी वुड बी सेफ। अगर 2 घंटे तक 2 hours तक बाजी प्रभु अगर ये पास में एनिमीज़ को रोक के रखते हैं तो शिवाजी महाराज सेफली ऊपर विशालगढ़ पे पहुंच सकते हैं। द बैटल ऑफ घोड़किंड, बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास। इतने में वो एनिमीज घोड़किंड के एंट्रेंस में आ पहुँचे। वेयर अ फायर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस, बहुत ज़ोरों से जो फायर्स बैटल्स चालू हो गया। ओके, बैटल मतलब वॉर, ओके, युद्ध। द माउलाज हु वेयर एडाप्टेड एट द यूज ऑफ द स्लिंग harassed the enemy with shower of stones and boulders from the hilltop and killed many of them। ये जो मावलास थे उनके पास तो वेपन नहीं थे, उन्होंने क्या किया था? जो पत्थर थे, बड़े बड़े माउल्डर्स थे, वो जमा करके रखे थे और वो छुपे बैठे थे इसमें, पेड़ में, पहाड़ी में, हिल्स में। उन्होंने ऊपर से उनके ऊपर इतनी बारिश, जैसे कि बारिश शावर किया पत्थरों का, उसमें बहुत सारे एनिमीज क्या हो गए? मर गए। किल्ड मेनी ऑफ देम। Okay, the first batch of the attacking troops withdraw in confusion। हाँ, एनिमीज़ ने क्या किया था? एक एक उन्होंने भी ग्रुप्स बनाए थे। उन्होंने पहला ग्रुप भेजा। ओके, और मावलास ने उनको इतना कंफ्यूज किया, कहाँ से पत्थर आ रहे हैं, कहाँ से वो छुपे थे। उस टाइम पे क्या था? बहुत ही घना जंगल था, ओके, फॉरेस्ट था। उस पेड़ में, पहाड़ी में वो लोग ऐसे छुपे बैठे थे कि एनिमीज़ को दिख ही नहीं पा रहे थे। और ऊपर से उन्होंने क्या किया? पत्थरों का, स्टोन्स का इतना बड़ा शावर, हाँ, बारिश की कि वो कंफ्यूज हो गए, कहाँ से पत्थर आ रहा है, कहाँ से, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। और वो कन्फ्यूजन में फर्स्ट ग्रुप क्या हुआ? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके एनिमीज़ मर गए। अनादर बैच टुक देयर प्लेस, फिर दूसरी बैच आ गई। ओके, बाजी प्रभु अर्ज्ड हिज ट्रूप इनटू द अटैक। द मावलाज वॉर क्राई, मावलाज की वॉर क्राई क्या थी? मराठा की वॉर क्राई क्या थी? हर हर महादेव। वो जो युद्ध में जाते थे तब वो जोरों से क्या चिल्लाते थे? हर हर महादेव। इकोड थ्रू द हिल्स, बहुत जोर जोर से हर हर महादेव करके चिल्लाते थे और एनिमीज के पे टूट पड़ते थे। एंड द ब्रेव मावलाज कट डाउन द एनिमी ट्रूप्स इन द फायर्स। जैसे ब्रेव मावलास थे वो गिने चुने ही थी, उन्होंने इतने बड़े एनिमीज़ की दूसरी ट्रुप को भी क्या किया? हरा दिया। एंड डिस्पैचेड अटैक थ्रू द दिन ऑफ द बैटल दे हर्ड देयर कैप्टन शाउटिंग एनकरेजमेंट टू देम। हाँ, इतने में उनको अपने जो कैप्टन थे उनकी आवाज़ आ रही थी, ब्रावो माई लेट्स गो अहेड, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी। ओके, वो क्या चिल्ला रहे थे? चलो, गो अहेड, आगे चलो, अटैक करो, डिस्ट्रॉय द एनिमी। द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वॉज ऑल्सो डिफीटेड। इस तरह से एनिमीज़ की दूसरी बैच भी मावलाज ने, शिवाजी के एनिमीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दी। शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ द विशालगढ़। इस पीरियड में शिवाजी महाराज कहाँ तक पहुँचे थे? फुट ऑफ द विशालगढ़, विशालगढ़ के नीचे पहुँच गए थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बिसाइड बाय द एनिमी। शिवाजी फॉट through the rank of the besiegement troops and was on the last step of his ride of the safety। इस तरह से शिवाजी अभी लास्ट राइड पे, मतलब पहुंचने ही वाले थे। बाजी द ब्रेव, इन द मीन टाइम द बैटल एट द पास कंटिन्यूड अप अनअबेटेड। मतलब इस पीरियड में ये बैटल तो बहुत ज़ोरों से चल रहा था। एनरेक्ट एट द डिफीट of his first 2 attacks, Siddhi Masood organized and dispatched a third batch of troops against बाजी प्रभु and his brave man। अभी बाजी प्रभु और उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने 2 बैच को तो एनिमीज़ के डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी जो सिद्धि मसूद हैं उन्होंने 3rd बैच को भेज दिया। दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फॉट विद ग्रेट करेज। ये जो 3rd बैच थी, बाजी प्रभु के पास तो
गिने चुने ही सोल्जर्स थे, उनके पास समझो एक ही बैच थी, एक या दो बैच रहेंगी, लेकिन एनिमीज तो एक के बाद एक अलग अलग बैच भेज रहे थे, ठीक है ना। थर्ड बैच जो आ गई, उन्होंने बाजी प्रभु को चारों तरफ से क्या क्या घेर लिया। द सराउंडेड बाय बाजी प्रभु हु फॉट विद द ग्रेट करेज। सराउंडेड मतलब चारों तरफ से उनको घेर लिया। दो वॉन्डेड एंड अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स विथ हिज बॉडी कवर्ड विथ ब्लड। मतलब ये जो एनिमीज थे, उन्होंने बाजी प्रभु के को चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर चारों तरफ से अटैक किया। तो उनकी बॉडी जो थी पूरे कवर्ड हो गए, ब्लड से कवर हो गए, पूरे बॉडी से उनके ब्लड आने लगा था, इतना एनिमीज ने उनके ऊपर अटैक किया था। बाजी वुड नॉट विड्रॉ फ्रॉम द पास बट कंटिन्यूड द फाइट। इतना उनको दर्द हो रहा था, इतने जख्म हो गए थे, इतना ब्लड निकल रहा था, फिर भी उन्होंने वो अपना पास छोड़ा नहीं, पास में से एंट्रेंस में से बाहर बाजू नहीं हटे, उन्होंने अपनी फाइटिंग चालू रखी। एट द सेम टाइम ही अर्ज्ड हिज मावलाज टू अटैक द एनिमी। और बीच में वो अपने मावलाज को क्या कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। क्या एनकरेज कर रहे थे, ब्रेव हो माय लेड, गो अहेड, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी, हर हर महादेव। इस तरह से वो अपने जो सोल्जर्स थे उनको इनकरेज कर रहे थे। ओके, disheartened by the fearful attack, the enemy again withdraw, but बाजी was fatally wounded। लेकिन बाजी प्रभु को बहुत ही वोंड हुए थे। वोंड मतलब बहुत लगा हुआ था उनको चारों तरफ से, उनकी पूरी बॉडी ब्लड हो रही थी, पूरी बॉडी कवर हुई थी विद द ब्लड। ही वॉज हैंगिंग ऑन टू लाइफ जस्ट टू हियर द साउंड ऑफ गन फायर फ्रॉम द विशालगढ़। उनको इतना वोंड हुए थे, इतना ब्लड निकल रहा था कि उनकी बॉडी बस किसकी वेट कर रही थी कि कब गन फायर की आवाज़ सुने और वो कब, उसके लिए उनकी जान जो थी अटकी हुई थी। ओके, गोडखिंड बिकम पावनखिंड एंड देन द साउंड ऑफ द गन फायर वॉज हर्ड। और इतने में वो गन फायर की साउंड सुनाई दी फ्रॉम द विशालगढ़। विशालगढ़ से गन फायर की साउंड सुनाई दी। इसका मतलब क्या हुआ, शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ पे पहुंच गए। महाराज वॉज रीच्ड विशालगढ़, आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन पीस। जैसे उन्होंने गन फायर सुनी, हाँ, बाजी प्रभु सेठ कि अभी महाराज विशालगढ़ पे पहुंच गए हैं, अभी मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अभी मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूँ। सो सेइंग बाजी ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन हिज हिस्टोरिकल बैटल field. When Shivaji heard this news on Vishalgarh, he was greatly grieved. जैसे उन्होंने गन फायर की आवाज़ सुनी, बाजी प्रभु ने अपनी जान निकल गई, उनकी जान निकल गई। When शिवाजी heard, शिवाजी महाराज को जब ये न्यूज़ मिली कि बाजी प्रभु नहीं रहे, तो उनको बहुत ही दुख हुआ। ग्रेटली grieved मतलब वो बहुत सैड हो गए। He exclaimed, बाजी प्रभु देशपांडे laid down his life on the battle in the case of Swaraj, इन द कॉज ऑफ स्वराज। शिवाजी महाराज क्या बोले कि बाजी प्रभु जी ने अपने स्वराज के लिए क्या किया, अपनी लाइफ जान दे दी। द बांदल्स गेव अ ग्रेट बैटल, इट वॉज बिकम अ ब्रेव पैट्रियट्स लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज वोन। शिवाजी महाराज बोले कि बाजी प्रभु जैसे पैट्रियट से, हाँ, इसकी वजह से स्वराज क्या है, जीत सकता है। देयर ब्लड मेड द गोडखिंड अ प्लेस हॉली इन स्वराज। उनके ब्लड से घोड़किंड क्या हो गई, पावन हो गई, इसलिए घोड़किंड बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री एज अ पावनखिंड। इसलिए उन्होंने घोड़किंड का नाम क्या रखा गया, पावनखिंड। ओके, घोड़किंड को क्या बोलते हैं अभी, पावनखिंड। वी पे आवर रिपीटेड होमेज टू द ब्रेव बाजी प्रभु एंड हीज ब्रेव मैन। इस तरह से अपने गिने चुने लोगों को लेकर बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को सेफली विशालगढ़ पे पहुंचा दिया। Okay, so he became immortal in the history. Okay, read this lesson carefully and try to answer the questions. Bye.